हामीले जुन अपेक्षा सायद आएको छौँ त्यो कुरा पूर्ण हुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। जसले खायो त्यसलाई मात्र लाग्छ, हजुरले खाएर मलाई पेट भर्दैन। सो सबै कुरा आफैले खाने हो, आफैले सिक्ने हो, आफैले लाने हो। यो लाने कुरा चाहिँ हामी सिकाउँ र हाम्रा साथीहरूलाई पनि सिकाउँ भन्ने मेरो यो भावको साथ आजको कार्यक्रममा र यो 4 दिनको कार्यक्रममा यहाँहरू सबैलाई म स्वागत गर्न चाहेँ र हृदयदेखि नै धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहेँ। वन्स अगेन थ्याङ्क यू सो मच सर, बोथ अफ यू, बिकज अफ यू आई एम हियर। हामी सरलाई एकदमै धेरै धन्यवादको ताली बजाउँदै म उहाँहरूलाई फेरि मैले स्वागत गर्न चाहेँ। थ्याङ्क यू, वेलकम यू अल। Sir, There is two possibilities. They could not learn in first program. That is the one reason. They could not learn in the first program. That's why they are repeating. And if they did not learn in the first program, why they are choosing the same teacher? That's the question. So I am an optimistic person, so I believe they want to learn more, and they must have got benefited from the first program. That's why they are here. So I would like to ask about the language preference, because me and Vinay can speak either English or Hindi. So you have Rajlakshmi ma'am will always assist us. yes. So you have 3 options: 100% English, 100% Hindi, and it's English. English. Half Hindi, half English. That's okay. तो हमारे बीच में कुछ रिपीटर्स हैं और हम जानना चाहेंगे कि they willingly came to the program or they were forced to come to the program. Okay. They wanted to learn or they could not learn. Okay, so we start with Srishti. Your experience after the first program, any changes you felt after the program? yes, actually, it's not, this for NLP, this is my first time. I was there in millionaires mindset. But it's not somebody pushed me. We had some another program in Kathmandu. We had another NLP program done by some another teacher. So for me it was I was wanting my teachers to come and to get the NLP program. So I waited for my teachers. So that's the reason. The way most of your students want you only as a teacher, you also want your teacher. Yes, I selected my teacher to do NLP. Thank you so much. Okay, सावधान जी आप बताइए कि आपने NLP किया था? Yes. Yes, second time. This is my second time, and because nobody forced me, I choose to repeat it again. During the first NLP, I just came to know what it and how it works. But after the first NLP, I got lots of benefit. That time I used to take A's as a this is the age limit. I could not do that type of things were there. But after first NLP, I joined my study again. And lots of things that I started learning, because age is just a number. And then lots of whatever money I invested, that also I get, 4-5 times back, more. Wow. And then I am here now, not just to see how it works. Somehow the surface level I got to know during my first time, and second time, now I'm not here to check how you going to do, how other do. Now I'm here to learn. Now it's the second time, so I must learn. I have knowledge about the surface area, and I have benefited also. So nobody forced me to join secondly. If this type of training will keep on going, I love to join, because networking, sharing, and then learning, these are the lifelong process I'm used to take. Thank you so much. Thank you both of you, Thank sir. you. Thank you. And Suresha, we would like to know you because I had also
positive experiences. I'm asking positive only. The things changed, the way of my thinking got changed, and why I'm here for the second time is that some of the things that I manifested, but I could not continue properly. On the way in between, I got stuck, and I got stuck, and I didn't know whether to go back or to come ahead, and how to deal with that situation. I would like to learn that. So, because of that reason, I'm here today. Very nice, very nice. Yesterday only. So, thank you very much for the opportunity to participate here, Raju ma'am. Actually, I had taken two training from our coaches. First one was NLP and second one was Millionaire Mindset. And one benefit frequently I taken from the NLP was when my teachers come to me and they said, "Ma'am, I'm feeling headache. I need to go home." And I said, "Okay, please sit down. I'll treat you." And within few minutes, their headache will, I cure their headache. So that was the one benefit that I'm frequently So using. from teacher, you have become a doctor. Doctor without medicine. Somehow. So, and then lots of things are there because when I joined the NLP training, I truly realized that mind has no limit. So we made a lot of preconceptions and lots of limitations that we had believed in our childhood through the different situations. So after doing NLP, my mindset is a little bit open, and I try to be aware when I feel like no, it's not possible or some kind of so when I feel difficult. So by that time, I recall the many things that I have learned in NLP, which helped me to believe that no, everything is possible. So many things are there, including Millennial Mindset. It takes a long time to explain to explain whole learnings, but I feel so blessed, and I would like to say thank you to Raja ma'am for organizing this NLP again in Nepal. And of course, though I do have a very tight schedule, I choose to be here because I want to learn more, I want to repeat, I want to see the things in more details. So thank you, coaches, thank you ma'am, thank you everyone. Thank you so much, and let's start. NLP. What is NLP? How does it work? What are the benefits of NLP? First section. अभी देखिए, जब बच्चा स्कूल में जाना शुरू करता है तो उसको सबसे पहले हम क्या what we teach? Alphabets, A, B, C. Okay. Then the child starts making words of it, and the child starts making sentence of it. In the first session, we are going to learn alphabets of NLP. Okay. How your mind works. And I believe इसमें से बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो आपको पहले से पता होगी, but we need to connect again. थोड़ा सा हमारे बारे में बता दें. Me and Vinay are from India. We have a company called Novice Coach. The course which we are conducting here, it is a 4 days course, and it is called NLP Practitioners Course. Why do we call it Practitioners Course? Because after getting certified, you can practice as a NLP practitioner. You can help people. The way doctor practices, the way lawyer practices, you can also practice as a healing coach or a person who can solve so many problems in people's life. For that, in these 4 days, you have to learn, you have to practice, because we give a lot of time to practice with each other. So we do a lot of other programs. So this program, the certificate you are getting, it is accredited with International NLP Forum, an international organization. We also do other programs like Train the Trainers, Millionaire Mindset, Leadership, and so many other things. We also do one program for students, say, or 60 years to 20 to 23 years. Old students called the Transol. It's a 3 days program on changing their habits, programming their mind, helping them studying better, how they can achieve their goals faster, what career they should choose. We take this for students. So let me tell you about this training. यहाँ पर मैंने देखा है कि नेपाल में
टीचर्स बहुत ट्रेनिंग अटेंड करते हैं? हाउ मेनी टीचर्स डू वी हैव? कैन यू रेज योर हैंड? हाउ मेनी टीचर्स डू वी हैव? ऑलमोस्ट एवरीवन. ओके, यहाँ पर बहुत ट्रेनिंग होती है. मैंने मतलब फेसबुक पे 5000 फ्रेंड हैं, उसमें मान के चलो कि 500 फ्रेंड है, 500 बिकॉज़ मैं अदरवाइज आई एम कमिंग डू लॉट ऑफ ट्रेनिंग है. मैं देखता हूँ कि यहाँ के जो टीचर्स हैं बहुत ट्रेनिंग अटेंड करते हैं. दे गो टू लॉट ऑफ ट्रेनिंग, बट दिस ट्रेनिंग इज डिफरेंट फ्रॉम अदर ट्रेनिंग. व्हाई? दिस ट्रेनिंग हैज नो एज लिमिट. इस ट्रेनिंग में कोई एज लिमिट नहीं है. 15-year-old child can also attend. हम मानते हैं 14-15 year the person who can understand, and 80-85-year-old person can also attend. If somebody who's not very educated वो भी attend कर सकता है. Somebody who's very well educated वो भी attend कर सकता है, because this is all about your mind and your life. Everybody has mind, everybody has to make life better. Told how to be done. NLP में हम आपको ये नहीं बताएंगे कि आपको क्या करना है. NLP में हम आपको बताएंगे आपको कैसे करना है, how to do. If you want to wake up early in the morning, if you are not able to do, we will tell you how to do that. हम बोलते लोगों को गुस्सा नहीं करना चाहिए. गुस्सा is not good for your health, mental and physical health. फिर भी करते. हम आपको बताएंगे how not to get angry. कितने लोग हैं जिनको गुस्से का प्रॉब्लम है, जिनको गुस्सा तेज आता है? ओके, सो हमारा एक सेशन आएगा कल मॉर्निंग में. जिनको भी गुस्सा आता है, विनय सर कैन हेल्प यू गेटिंग रिड ऑफ इट. ओके, मतलब दो चीज़ कर सकते हैं. एक तो होगा गुस्से को थोड़ा कम कर देना, ये भी कर सकते हैं. पूरा इट कैन ऑल्सो डिसअपियर कंप्लीटली. समबडी इज शाउटिंग एट यू एंड यू आर स्माइलिंग. दिस कैन ऑल्सो हैपन. ओके, नाउ NLP का इस्तेमाल. अच्छा, ये जो हम NLP करते हैं, पूरी दुनिया में जो NLP की ट्रेनिंग होती है इससे बहुत डिफरेंट है. वाई इट इज़ डिफरेंट? बिकॉज वी हैव मेड इट सो सिंपल. वी हैव रिमूव्ड ऑल टेक्निकल लैंग्वेज आउट ऑफ इट एंड वी हैव मेड इट सो सिंपल सो दैट एवरीवन कैन यूज इट. देखिए, आप यहाँ पर आए हो, यू आर नॉट हियर जस्ट टू लिसन टू अस, you are here to learn the technique. Like Samjana said that she learned a technique how to remove a pain in your body without taking a medicine, and that too within a minute. So many techniques we are going to teach you. So you have to learn, and once you learn those techniques, you can use those techniques in teaching, counseling, helping others. Somebody is suffering, किसी को कोई लाइफ में प्रॉब्लम है, वो आप उनको सॉल्व कर सकते हो. तो इट कैन बिकम एन ऑल्टरनेटिव प्रोफेशन टू यू. आप टीचर तो हो ही, आप एक हीलर भी बन गए, तो दैट बिकम्स एन ऑल्टरनेट इन योर लाइफ कि यू आर हेल्पिंग पीपल टू डू समथिंग. आई डिड माई मास्टर प्रैक्टिशनर 8 years बैक इन लंडन. आप ये बीच में देख रहे हैं एक there is an old man called Dr. Richard Bandler. 60 years back, he created NLP. He is from United States. He was 82 years of age when I learned master practitioner from Dr. Bandler. How you can be a good learner? देखिए, एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि टीचर के लिए सामने बैठना मुश्किल होता है. इट्स डिफिकल्ट फॉर अ टीचर टू बी ऑन द अदर साइड बिकॉज टीचर्स आर मोस्टली दिस साइड. ओके, बट वॉट आई एक्सपेक्ट फ्रॉम यू, बी रिसेप्टिव एंड ओपन माइंडेड. इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क. मोर क्वेश्चंस you ask, more clarity you will have. You can also ask in your own language. राजा मैम कैन ट्रांसलेट इट फॉर अस. थोड़ा धीरे स्लो नेपाली में बोलते हो, थोड़ा थोड़ा हमको समझ में आता है. ओके, जैसे आपको थोड़ा थोड़ा हिंदी समझ में आता है, ऐसे हमको थोड़ा थोड़ा यू कैन अंडरस्टैंड योर लैंग्वेज. अभी क्या होगा, फ्रॉम थर्ड सेशन, टुडे वी आर गोइंग टू हैव 4 sessions.
From third and fourth session, we are going to have some activities. So a demonstration will go here. So Vinay sir or me will call somebody from the participants and we will do an activity. There you have to learn. So when you are looking at us, how we are doing, what we are doing, you have to look at us, observe things properly. The good thing is this program is being recorded totally. I don't know whether she is going to share videos with you guys or not, but it is being recorded fully. आपको लगता है आपको अपने मोबाइल में रिकॉर्ड करना है, कोई एक्टिविटी को हम कर सकते हैं जब भी कोई एक्टिविटी होगा, बट यू हैव टू माइन्यूटली ऑब्जर्व. Then when some activity is going on at that time, do not write anything at that time when activity is going on. Why? Because your mind will be busy writing, not seeing the people. What you can do? After that activity gets over, we will show you the slides, the process. Most processes are already written in the book. We will give you in some time. So most important methods are given in that. But still, if you want to click the picture of this slide, that's all right. Okay? But don't get busy writing when we are presenting something. Okay? And you have any questions, you can always ask. Why you are here? Reason number one, to get rid of some of the challenges. देखिए NLP लोग दो वजह से अटेंड करते हैं. वो कोई प्रॉब्लम के साथ इधर में आते हैं एंड दे वांट टू रिजॉल्व देयर प्रॉब्लम. ओके, या फिर वो कहते हैं आई डोंट सी एनी प्रॉब्लम राइट नाउ बट आई वांट टू लर्न समथिंग न्यू. सो द सेकंड रीजन इज personal development. Third is to sharpen your professional skills and knowledge. Whatever profession you are into, NLP always makes it better. On day 4, we will be doing a activity called peak performance. And if you want to improve any of the skills of your life, you can do that just by that activity. And as I said, by becoming NLP practitioner, you have opportunity, one more professional opportunity to become certified healer and counselor. You can help people changing their habits. You can help people coming out of anxiety and depression. You can help people achieving their goals faster. So you become a professional practitioner. Abhi in these 4 days, आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने फॉर्म गूगल फॉर्म फिल नहीं किया है? Those who have not filled the Google form. Everybody has filled? Hello? Everybody has filled? Have you mentioned your challenges and bad habits in that in that form? So we will help you removing those things. So you are here. अगर आप किसी हैबिट को छोड़ना चाहते हो, किसी एडिक्शन को छोड़ना चाहते हो, अभी समझना मैम मुझे बाहर मिली एंट्री के, तो उन्होंने बोला कि सर उनके कोई जानकार हैं, ही वांट्स टू लीव द सिगरेट स्मोकिंग हैबिट. वी कैन लीव इट. ओके. आपको किसी चीज का फियर है, फोबिया है? कितने लोग हैं यहाँ पर जिनको हाइट से डर लगता है? हाइट से, माय गुडनेस, 1 2 3 4. अभी भी लगता है आपको? माय गॉड. ओके. वी कैन गारंटी यू विद इन 40 मिनट्स एक सेशन होगा हमारा डे 3 में. हाइट फोबिया विल गो एंड वी विल प्रूव इट हियर. किसी भी तरह का कितने लोग हैं जिनको लिफ्ट में आने में डर लगता है? एनीबडी हु इज स्केयर्ड ऑफ लिफ्ट? एनीबडी हु इज स्केयर्ड ऑफ वाटर? जब आप रिवर या लेक, यू आर स्केयर्ड ऑफ वाटर. सो मेनी ऑफ अस हैव सम और अदर फियर और फोबियाज. So we will clean them. Then third thing is unpleasant memories. हमारी लाइफ में पास्ट में कुछ ऐसी मेमोरीज होती हैं जो हमको बार बार बॉदर करती है. The way you can delete a picture from your mobile or a file from the computer, you can also delete an unpleasant memory from your mind forever if that bothers you. Okay. And any
mental block means my memory is too poor, I cannot get up early in the morning, I am very poor in maths, I cannot remember people's name, I cannot go to remember the address. Limited beliefs. ठीक है, mental blocks and limiting beliefs. So you can, in that Google form हमने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि आप 3 ऐसे गोल्स जो आप अचीव करना चाहते हो, we will help you achieving those goals, and many things which we are going to learn. Okay, in first NLP there was a participant called Sabita Thapa. Okay, she wanted to attend but she is not in town. She messaged me, I just messaged her in case she wants to join, and she messaged me back a week back, and she must have written 10 times thank you to me to help her coming out from many problems she had. She was struggling. Now she is out of all those problems. All problems are here. Okay, and now she is very happy. She messaged me a week ago. So जो भी प्रॉब्लम है, अगर आपको लगता है कि आप फॉर्म में कोई प्रॉब्लम लिखना भूल गए तो आप प्रॉब्लम यहाँ बताइए, हम आप उसको सॉल्यूशन करने वाले हैं. ओके, आप मैडम ने भी बात किया लिमिटिंग बिलीफ. कितने लोग हैं यहाँ पर, देखिए अभी आप स्टूडेंट हो, अभी आप टीचर नहीं हो. Leave your teacher tag outside this hall. Okay, so I'll ask few blunt and direct questions and you have to respond like a student. Okay, आप में से कितने लोगों को लगता है कि थोड़ा बहुत तो मुझे कॉन्फिडेंस की प्रॉब्लम है? Okay, fine, I appreciate you accepted it. Now the question that comes, सवाल ये आता है, आपको कैसे पता चला? How did you come to know that you lack confidence? I'm giving you 4 options. You were born, astrologer made your जन्म पत्रिका, उसमें लिखा था भाई ये जो है लड़की गलत नक्षत्र में पैदा हुई है, जिंदगी भर इसको आत्मविश्वास की कमी रहेगी. ऐसा लिखा था क्या उसमें? हेलो, वॉज इट रिटन? नो. सेकेंड ऑप्शन, sometime you might have fell sick and you would have gone to the doctor, और डॉक्टर ने कहा भाई आप बीमार हो, आपका ब्लड टेस्ट करवाने वाले हैं, तो आपका ब्लड टेस्ट करवाया और जब ब्लड की रिपोर्ट आई तो उसमें लिखा कि ये ब्लड में ये कंपोनेंट कम है इसलिए कॉन्फिडेंस का प्रॉब्लम है. Is this the reason? Third reason, that people told you that you are less confident, that's why you started feeling less confident. Fourth reason आपको बताना है, मैंने बता दिया तो आप वो क्लू मिल जाएगा. सो आपसे मेरा सवाल है, आपको कब और कैसे पता चला कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है? या बचपन में पैदा होते ही घर पेरेंट्स ने बोल दिया था कि बेटा शक्ल देख के लग रहा है कि कॉन्फिडेंस कम है, ऐसा तो नहीं बोला था? कैसे लगा आपको पता? हाउ डिड यू कम टू नो? ओके, ओके, ओके. नाउ you are seeing so many people around you, but now you are standing and speaking and your mind is not blocking and you are proving yourself wrong. इन्होंने भी बात किया, जिस फ्लुएंटली उन्होंने अपनी बात बोली, आपको लगता है उनमें कॉन्फिडेंस की कमी है? नहीं है? सिट डाउन. हाँ जी सुरेश, आप बताइए, why do you think, कब और कैसे पता चला? Okay. Okay. Fine. Being confident or no confident, it is nothing but a state of mind. If you think 10 times, जब मैं स्टूडेंट से पूछता हूं कि आपको कब और कैसे पता चला,
तो एक स्टूडेंट बोलता है, सर when I was in 8th standard, I was given a task to speak, go on the stage and speak something. When I reached on the stage, my heart started pounding very fast and I could not speak anything. And then I realized that I don't have confidence. Huh. Right now, too, yeah, I want to speak, but I don't. And I think But you are smiling. When you are afraid, you don't smile. Huh. I judge myself, no, after doing something. Everybody judges. But good thing is that we know where we need correction. We know देखो, जब हम खड़े होकर बोलते हैं और हमें डर लग रहा होता है ना, अंदर दिल की धड़कनें तेज होती है, तो स्माइल नहीं आती है. वो जैसा मुंह शोक सभा में बैठता है ना, ऐसा मुंह हो जाता है. बट यू आर स्माइलिंग. आप ये बोलना बंद कर दीजिए. लाइक यू सेड, when I see people around, I feel conscious or I feel nervous. Stop saying this. That's it. Today you proved yourself wrong. You confidently, you stood up, and in one sentence you said what you wanted to say. And many of even your teacher is stranger to you because you never met me before. Getting my point? Belief की बात कर रहे हैं. अगर आपने ये 10 times if you feel, तो मैं बच्चे से पूछता हूँ कि आपको डर कब, आपको कैसे लगता है कि आपका कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास कम है. बोला जी 8th स्टैंडर्ड में स्टेज पे बोलने के लिए बोला था. आई कुड नॉट स्पीक प्रॉपरली. मेरे दिल की धड़कन बहुत बढ़ गया, तो मुझे लगा मेरा आत्मविश्वास कम है. वो बोलने लगा. अब प्रॉब्लम क्या होती है, अगर आपने बोलने लगा मेरा आत्मविश्वास कम है, वो एक ही जगह पर था आत्मविश्वास. माई कॉन्फिडेंस वॉज लेस इन पब्लिक स्पीकिंग, नॉट एवरीवेयर. बट वॉट आई सेड, माई कॉन्फिडेंस इज लो. And slowly and gradually my mind generalizes it and it applies in every part of my life. That what happened with her when she was in the state of anxiety. When you feel low, और जब आप लो फील करते हो और उस वक्त कोई चीज़ दिमाग ने एक्सेप्ट कर ली, तो वो उसके लिए यूनिवर्सल ट्रुथ बन जाता है. It becomes universal truth. So note down all your problems. If your mind believes you are confident, you are confident. Within a second you become confident. But if your mind believes no, you cannot do this, you will not be able to do that. So you are what you believe. बिलीफ हमारे कैसे फॉर्म होते हैं? जैसे मैंने बताया कि उस बच्चे ने कहा मुझे आत्मविश्वास की कमी है, तो बिलीफ कब फॉर्म हुआ? जब 8th स्टैंडर्ड में उस स्टेज पर जाकर के पब्लिक स्पीकिंग किया and he could not speak. तो उसको वहाँ क्या बिलीफ बना? My confidence is low. His confidence was not low. Maybe for that particular moment, he lost the courage, or he was not well prepared for the situation, or his mind went blank. So he was poor at public speaking, not in other areas. तो हमारे बिलीफ्स कहाँ फॉर्म होते हैं? कुछ चाइल्डहुड के हमारे एक्सपीरियंसेस हैं, वहाँ से ये फॉर्म होते हैं. और आप यहाँ पर टीचर हो, इतने मैं आपको बता दूँ, टीचर्स के लिए बहुत बड़ी ज़रूरत. हमारी ज़िंदगी में 2 लोग बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, अच्छे में भी और बुरे में भी. पेरेंट्स एंड टीचर्स. पेरेंट्स एंड टीचर्स. एंड बिकॉज यहाँ पर टीचर्स बैठे हैं, इसलिए मैं एक स्टोरी आपको सुनाऊंगा, रियल स्टोरी. अ गर्ल वॉज इन 10th स्टैंडर्ड, अ वेरी ब्रिलियंट चाइल्ड. हर मोम अप्रोच्ड मी दैट शी वॉन्ट्स अ करियर काउंसलिंग, बिकॉज इन 11th स्टैंडर्ड उसको क्या सब्जेक्ट लेना चाहिए फॉर अ करियर. तो उन्होंने मुझको पूछा, तो हमने पूरा साइंटिफिकली उसका काउंसलिंग किया. काउंसलिंग, वी विल टीच यू the scientific way of counseling here on day 2. I asked her, what you want to become? What is your dream? What is your passion? So she said, I want to become astronaut. Astronaut. Fine. Test किया तो ये लगा कि हाँ, she is good in maths, she is good in science, she is very sharp, very focused, and then we decided कि you should go for science. Fine, she took science. After 6 months, she was in Mumbai
and we were 1,000 kilometers away from Mumbai. One fine day, her mom called us कि आपसे मिलना है. मैंने कहा फ़ोन पे नहीं, फ़ोन पे बात नहीं होगी, हम आएंगे. They traveled 1,000 kilometers to meet both of us. Okay? डॉटर को लेके आए. 6 months पहले वो क्या मिलने आए थे, अभी बोलते हैं सर शी गोज़ टू स्कूल, शी गोज़ टू कोचिंग इंस्टीट्यूट, बट हर फेवरेट सब्जेक्ट इज मैथ्स, बट शी डजंट वांट टू स्टडी मैथ्स. एंड शी स्टार्टेड सेइंग नहीं मुझे आई डोंट लाइक साइंस एनी मोर. नाउ सी व्हाई शी इज सेइंग सो. Nobody has no idea कि अचानक से क्या हुआ. She was passionate. Then हम एक प्रोसेस होता है to reach to the root cause of a problem. समस्या की जड़ तक पहुंचने का एक तरीका होता है. विनय सर कल शाम को आपको एक सेशन में बताएंगे हाउ टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम. जब आप डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर को प्रॉब्लम पूछता है तभी दवा देता है. ओके. शी जॉइंड अ कोचिंग इंस्टीट्यूट in 11th standard. This institute prepares you to qualify an entrance exam which you give after 12th. IIT का एग्जाम होता है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी. बहुत टफ एग्जाम होता है. So today is the first day in the coaching institute. Teacher comes inside the hall and there were 50-60 students on the day one. So teachers started asking what you want to become in your life. Everybody wants to do IIT because they are from the same batch. तो सब अलग अलग बोल रहे हैं. किसी ने बोला मुझे माइक्रोसॉफ्ट में जॉब करनी, मुझे सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना है. Now this girl stood up and said, "Sir, I want to become an astronaut." The moment she said so, what teacher said? Come on, to become the astronaut, you have to be in top 500 in IIT entrance exam, and it is not everyone's cup of tea. ठीक है. क्या बोला उन्होंने कि हर किसी के बस की बात नहीं है. Why she took science? To become astronaut. If you ask, no, you cannot become astronaut. She has no interest in science. Day one, she lost all interest from maths and science. Who was responsible? Teacher. One sentence of a teacher can create a belief, bad belief, good belief, can destroy a belief, can destroy a confidence. Important thing. And therefore, parenting and teaching, यहाँ से सबसे ज़्यादा belief form होते हैं. हमारे पास जितने cases आते हैं ना, लोगों की प्रॉब्लम है 25 years की एज में, 30 years की एज में. प्रॉब्लम कहाँ से शुरू होती है? 5 years की एज में. पेरेंट्स said something, teacher said something, और स्कूल में बुलिंग हुआ. These are the reasons. Peer influence, आपके जो साथ के स्टूडेंट्स होते हैं, दोस्त होते हैं. Exposure to media, newspapers, TV, movies, social media, and sometimes other reasons. कई बार बिना किसी रीजन के, बिना किसी बैड एक्सपीरियंस के, यू डेवलप अ फियर. किसी ने कोई ड्रीम देखा and it was a scary dream of say 5 minutes. The person could not forget that dream, and person thought about that dream for next 10 days, and that became a scary belief for that person. Okay. तो चलिए, दिमाग के बारे में आपको सबको पता है. मैं थोड़ा सा 5 minutes आई विल स्पीक अबाउट इट. Generally, we have two minds. One is right brain, one is left brain. Anybody who knows about right brain and left brain? Okay. Right brain and left brain. Hello, anybody knows about what is right brain, what is left brain? No idea? Should I tell you? Okay. Right side of the brain is called subconscious mind. Left side of brain is called conscious mind. Conscious mind, hello, conscious mind is very logical. जब पहली बार आपको इस प्रोग्राम में आने के लिए बोला था तो कॉन्शियस माइंड ने कहा होगा
अरे इतना पैसा क्यों देने का, 4 days, 4 दिन भी दो जिंदगी के, पैसा भी दो, ऐसा काम क्यों करने का? किसने बोला ये? कॉन्शियस माइंड. कॉन्शियस माइंड ऑलवेज स्टॉप्स यू ट्राइंग फॉर न्यू थिंग्स. इट डजंट अलाउ यू टू डू न्यू थिंग्स. इट गिव्स लॉजिक्स, इट आस्क फॉर लॉजिक. क्या फायदा होगा? ओके. Subconscious mind doesn't ask for any logic. It never asks for any logic. It accepts everything. So, and what is unconscious mind? अभी जैसे आप मुझे सुन रहे हो, you look at me, but you are thinking something else. कई लोग होते हैं ना, क्लासरूम में होते हैं लेकिन कहीं और चले जाते हैं. शरीर यहां पर होता है, आत्मा कहीं और भटकने चली जाती है. कई बार होता है ऐसा. आप यू आर लॉस्ट, एक्चुअली वी कॉल इट, यू आर प्रेजेंट हियर बट यू आर लॉस्ट समवेयर. सो उस टाइम पे क्या होता है, आप यू आर इन सबकॉन्शियस स्टेट. योर कॉन्शियस माइंड इज स्लाइटली, इट गोज डाउन. अनकॉन्शियस क्या होता है? जब आपको कुछ पता नहीं होता, व्हेन यू आर डीप स्लीप, एंड इवन इफ अ पर्सन इज इन कोमा. और आपको मैं बता दूं कि 90% टाइम पूरी जिंदगी में आप सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस रहते हैं. ओनली 10% ऑफ द टाइम इन एंटायर लाइफ आप सिर्फ कॉन्शियस होते हो. और सारे के सारे आपका जो बिलीफ है वो सबकॉन्शियस में होता है. वी स्टार्टेड गेटिंग प्रोग्राम्ड इमीडिएटली आफ्टर वी वर बॉर्न. अब आप देखिए, बच्चा जब पैदा होता है तभी से उसका बिलीफ बनना शुरू हो जाता है. कैसे बनता है मैं बताता हूँ. When child is born and say child is 10 days old, child cannot speak, doesn't hear properly because only 10 days old, doesn't express anything. उसको उस वक्त या तो वो रोता है, और उसको भूख लगती है तो रोता है, बस उसको और कुछ नहीं आता. अब क्या होता है कि थोड़ा और बड़ा होता है तो समझने लगता है. अभी चाइल्ड इज 3 months ओल्ड, ठीक है. अभी तक बच्चा सिर्फ 2 वजह से रोता था, या तो उसको कोई डिस्कम्फर्ट है या उसको भूख लगी है. लेकिन अभी वो बच्चा 3 महीने का हो गया, थोड़ा स्मार्ट हो गया, बेड पे लेटा हुआ है, बोर हो रहा है, तो क्या करता है वो बच्चा? रोने लगता है. जैसे आप उसको गोद में उठाओगे, चाइल्ड गेट्स क्वाइट. उसको लग रहा था यार तुम सब मस्ती मार रहे हो, मैं अकेला, मुझको यहाँ पे छोड़ा हुआ है, जस्ट पिक मी अप. गेट स्मार्टर. जब चाइल्ड बहुत छोटा होता है तो बहुत सबसे ज़्यादा पैम्परिंग होता है चाइल्ड का. एवरीवन इन द फैमिली ट्राइज टू प्ले विद दैट चाइल्ड. चाइल्ड को समझ में आ रहा है, वो ही कैन नॉट स्पीक, शी कैन नॉट स्पीक, बट उसको समझ में आ रहा है आई एम द मोस्ट पैम्पर्ड चाइल्ड इन साइड द फैमिली. नाउ चाइल्ड इज 8 months ओल्ड, स्टार्ट्स क्रॉलिंग, घुटनों के बल चलना शुरू कर दिया. अभी तक वो बिस्तर पर हर चीज़ को देखता था, लाइट को देखता है, फैन को देखता है, ओके. अब वो जब चलने लगा है तो ही वॉन्ट्स टू टच एवरीथिंग, बट इन द मीन टाइम देयर कुड बी अ डेंजरस ऑब्जेक्ट. यू कैन टच द इलेक्ट्रिसिटी पॉइंट, यू कैन टच द फायर. सो मॉम इज वर्किंग इन साइड द होम, द चाइल्ड इज गोइंग हेयर एंड देयर. आफ्टर सम टाइम मॉम गेट्स एंग्री. व्हाट हैपेंड? मॉम स्टार्ट शाउटिंग. एक जगह पे नहीं बैठ सकता, इधर उठा के उसको ये बैठा. और अभी मॉम की पापा से लड़ाई हुआ होगा तो मॉम का माइंड थोड़ा गर्म है तो उसको थोड़ा सा एक स्लैप भी कर देते हैं. अब बच्चे को लगा बाप रे, मैं तो इनको बड़ा भला इंसान समझता था, ये तो ज़ोर से चिल्लाते भी हैं, ये तो मारते भी हैं. उसका पहला बिलीफ चेंज हुआ. What was his first belief? That everyone around me is very beautiful person, everyone loves me. But for the first time in 8 months, उसका बिलीफ टूटा. वो सोचता है ये जितने भले दिखते हैं उतने भले हैं नहीं. उसका पहला बिलीफ बदलता है. और यहाँ जितने बैठे होंगे, those who are parents, उन्होंने बचपन में बच्चों को अपने फ्रस्ट्रेशन की वजह से भी डांटा होगा. अब बच्चा है, इस दुनिया में आया है, उसको एक्सप्लोर करना है तो एक्सप्लोर करेगा. चाइल्ड इज एक्सप्लोरिंग. अगर एक्सप्लोर नहीं किया तो डम्ब विल गेट डम्ब. सो वहाँ से
शुरुआत होती है। और जब बच्चा फिर घर से बाहर निकल के स्कूल आता है तो उसकी लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव आता है। आपको लगता है नर्सरी का बच्चा है, लेकिन वो पहली बार घर से निकल के एक नई दुनिया में जाता है। अभी तक वो बच्चा किससे इन्फ्लुएंस था? पेरेंट्स से। नाउ अब पेरेंट्स से तो उसका मोह भंग हो गया, क्योंकि पेरेंट्स अब उसको डांटते हैं। तो आप तो टीचर्स में उसको ज़्यादा अफेक्शन दिखता है। अच्छा, नर्सरी में जब बच्चा आता है तो बच्चे बहुत रोते हैं क्लास में, तो टीचर उसको थोड़ा सा पैम्पर भी करते हैं। तो टीचर इज लुक्ड एट द नेक्स्ट पेरेंट, तो द चाइल्ड गेट्स मोर इन्फ्लुएंस फ्रॉम द टीचर्स। फिर वो दोस्तों से मिलता है तो वहाँ पर उसके नए बिलीव्स क्रिएट होते हैं दोस्तों के साथ। तो ये पूरी ज़िंदगी ये सब चलता रहता है। लेकिन पहले 8 साल में, from 0 to 8 years, the maximum belief of a persons are formed. Now see, and most of you are from preschools, and you guys are responsible because most parents do not know how to do parenting. But यहाँ पे तो आप लोग अर्ली चाइल्डहुड के एक्सपर्ट हो, सारे के सारे बड़े बड़े कोर्स कर रहे हो अर्ली चाइल्डहुड के ऊपर। तो आपको तो समझ में आना चाहिए कि 8 साल तक उस बच्चे की फ्रेमिंग आप कर सकते हो। अब आप देखिए, जैसा मैंने कहा कि कॉन्शियस माइंड का काम सिर्फ 10% है आपकी ज़िंदगी में। कितना? हेलो, 10% ओनली, एंड रेस्ट 90% इज योर सबकॉन्शियस माइंड। तो 10% में भी क्या आता है? एनालिसिस, थिंकिंग एंड प्लानिंग, एंड ओनली शॉर्ट टर्म मेमोरी। और सबकॉन्शियस माइंड में सारी लॉन्ग टर्म मेमोरी, इमोशन, फीलिंग्स, हैबिट्स, रिलेशनशिप पैटर्न्स, एडिक्शंस, इनवॉलेंट्री बॉडी फंक्शंस। इनवॉलेंट्री बॉडी फंक्शन मतलब बॉडी के वो फंक्शन जो आपकी इच्छा के बिना हो रहे हैं। यू आर लुकिंग एट मी, यू आर लिसनिंग टू मी, बट आपकी ब्रीदिंग चल रही है, अपने आप चल रही है। इनवॉलेंट्री बॉडी फंक्शन कौन कर रहा है? सबकॉन्शियस माइंड। योर हार्ट इज पंपिंग, योर ब्लड इज फ्लोइंग, योर लंग्स आर वर्किंग। हु इज डूइंग इट? योर सबकॉन्शियस माइंड इज कंट्रोलिंग इनवॉलेंट्रीली। ओके, ये सारे के सारे इंट्यूशन, ये सब सबकॉन्शियस माइंड के काम है। यस प्लीज। Of course, through NLP we are learning that only. We can reprogram it. So we can like stop our heart beating? No, you cannot. You cannot. You can control subconscious mind. In that case, that negative beliefs which are there, you can change it. If your subconscious mind believes that you can be the prime minister of this country, you could be. And Genji has a very good prospects in Nepal. Okay, so your subconscious mind gives you a lot of power. The person who goes on the Everest is a person like us, but that person's subconscious mind tells that yes, you can do, that can be done. हमारे यहाँ पे एक किस्सा चलता है सर, उसका नाम अभी से दिमाग से स्किप हो गया। the person who lost, the lady who lost legs in train accident, क्या नाम है उसका? अरुणिमा सिन्हा. Arunima Sinha was born in a very poor family in Uttar Pradesh, and she was coming to Delhi to give an exam. She was in train में कुछ चोर आए, कुछ बदमाश लोग आए रात को 1 बजे, तो वो लूटपाट कर रहे थे। तो दिस लेडी फॉट विद देम। चलती ट्रेन में से इसको उठा करके उन्होंने ट्रेन से बाहर फेंक दिया, एंड शी वॉज थ्रोन ऑन द नेक्स्ट ट्रैक। जैसे वो दूसरे ट्रैक पे गिरी, उधर से दूसरी ट्रेन आई और उसका एक पैर चला गया। और जो उसका पैर चला गया रात को 2 बजे, सुबह 6 बजे तक उसने अपने आप को ये बोला, आज सोचो ना किसी का एक पैर चला जाए तो क्या हालत होगी उसकी, कितनी ब्लीडिंग हो जाएगी। अंधेरे में वो सुबह 2 से सुबह 6 बजे तक के मेरे को ज़िंदा रहना है, जैसे उजाला होगा कोई ना कोई आएगा। सुबह 6 बजे किसी आसपास के गांव के लोगों ने उसको देखा, बरेली के अस्पताल में लेके गए। बरेली के अस्पताल में लगा कि ये तो इसका पैर काटना पड़ेगा, पैर काट दिया। याद है वो जो एग्ज़ाम देने जा रही थी, किसका? शी वॉन्टेड टू बी एन एथलीट, शी वॉज एन एथलीट, एंड वो CISF का एग्ज़ाम देने जा रही थी पूरी, और गरीब फैमिली से थी, पूरी लाइफ खत्म हो गई। देन शी वॉज एडमिटेड टू एम्स, जो इंडिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है दिल्ली में। 6 months शी वॉज देयर। वो 6 महीने में उसने अपने दिमाग को रिप्रोग्राम किया कि आई वॉन्ट टू मेक माई लाइफ मीनिंगफुल। एंड उसने क्या करूं क्या करूं क्या करूं, कुछ तो करना है। फिर वो बछेंद्री पाल का आपने नाम सुना होगा, वन फ्रॉम इंडिया। शी वॉज वन ऑफ दी पर्सन्स जो शुरुआती दौर में
एवरेस्ट कॉन्कर किया, एंड शी गाइडेड हर विद वन लेग, फिर उसने आर्टिफिशियल लेग लगवाया, ट्रेनिंग ली, एंड देन शी बिकेम द फर्स्ट पर्सन टू कॉन्कर द माउंट एवरेस्ट विद इम्प्यूटेड लेग. एंड नॉट द माउंट एवरेस्ट, पूरे 7 कॉन्टिनेंट्स में से जो जो भी पीक है, हर पीक पे जा कर के उसने किया. एंड अभी वो मोटिवेशनल स्पीकर है. अभी 1 घंटे के मोटिवेशनल स्पीक का 5 लाख रुपए चार्ज करती है. शी कुड चेंज हर सबकॉन्शियस माइंड. दिस इज द सबकॉन्शियस माइंड विच कैन मेक यू मोर पावरफुल. हमारे पास तो पूरे हाथ पूरे पैर है, फिर हमने सोचा कभी कि हम एवरेस्ट पे जा करके कर सकते? नहीं कर सकते. बोला ये 5 फ्लोर येलो पगोड़ा का ये लिफ्ट से जाना पड़ता है. ओके, सो कॉन्शियस माइंड, subconscious mind is the key, and through NLP we are addressing it. It has all long term memories. Let's try it. Close your eyes. Close your eyes. Take a deep breath and think about your early childhood memories when you were very small and you were going to schools in initial days of your life. उस दिनों की याद करो जब आप बहुत छोटे थे और शुरू में जब आपने स्कूल जाना शुरू किया. Just think, क्या हो रहा था. हर चीज़ को आप सोचिए उन मेमोरीज के बारे में. एंड नाउ स्लोली एंड ग्रेजुअली यू कैन ओपन योर आईज. सो व्हाट्स योर नेम? हाँ, विजिता. बैठिए. आपने क्या देखा? ओके, सो आप ट्यूशन पे जा रहे थे. हाँ जी, आपने क्या देखा? So it is a real picture or a real picture? Okay, so she was holding mother's hand, holding the bag. What did you see? I was in a school. I saw my playground and Okay. friends. Yes, ma'am. What did you see? Carrying my water bottle, bag. Wow. Yes, ma'am. आपने क्या देखा? I'm going to school. Okay. I'm on the way. Okay. Okay. Yes. What did you see? Me and my sister waiting for bus. Okay, you were waiting for bus. Perfect. Sir, what did you? Teaching me letters. Okay. So, ये जो अभी आपने मेमोरी को रिकॉल किया, do you recall it every day? No. You must have recalled it after so many years. That's the evidence. Subconscious mind has long-term memories. Immediately it takes out. Good memories, bad memories, both memories. Now let us understand why we are doing NLP, what is the purpose of NLP, and how to do best in your life. What is the blue circle? Can you tell me? You have to be more interactive. Hello. What is the blue circle? The result you want to achieve in your life. You have to make a lot of money. You have to buy a house. You have to achieve this. You have to get this degree. You have to go for a tour to international different countries. You have to buy a car. You have to stay healthy. These are the results you want to achieve in your life. Everybody has a long list of dreams they want to achieve. But to achieve that blue circle, you have to do what is written in the red circle. Actions and behaviors. Without action, nothing can be achieved. So if you want, I want to take a degree, I want to study, take admission in a college. I have to exhibit that behavior. तो वो behavior और action, सवाल ये है कि ये जो red circle है, it is controlled by green circle, that is your beliefs, thinking, attitudes and feelings. Now what happened, I was sharing the story of that girl, she wanted to be the astronaut. The result she wanted to achieve, but she stopped going to coaching institute. She stopped
studying maths. Actions were not there. Why actions were not there? Why she stopped taking that action? Because teacher said it's not easy for you. उसने यू के लिए भी नहीं बोला था. It's not easy for people to score 500 ranks and to be the astronaut. तो उसका बिलीफ चेंज हो गया. क्या बिलीफ बना? It's not possible for me to score 500 rank. The moment belief changed, mind stopped action. And result तो आएगा ही नहीं. When there is no action, there is no result. You know, 10-15 years back, I went to Singapore, and it was a group tour of 5-6 couples, and in one of the couple, the male was very handsome, and the body was really very good. So I asked him. He said, I go to gym every day and I spend 2 hours and then I build this body, and I've been going for last 5 years. And I decided I'll be doing the same thing. So earlier I used to think, why do I need to go to gym? I'm already very slim. Okay, perception kya tha? To reduce the weight, you should go to gym. So I come back to my city and I joined the gym. I paid for 6 months. First day, trainer came to me and made me work very hard. I was so tired that I go back to home and slept for 1 hour. And then woke up and then went to office. And in 3-4 days, it became my routine. Going to gym, coming back, sleeping for 1 hour, and then going to office. Fine. I was noticing one person during 7 to 8 time in the morning. A slim person like me was to work hard like anything in the gym. सबसे ज़्यादा जिम में मेहनत वो करता था. बड़ा बड़ा वेट उठाना, सारी मशीन पे करना. कहा यार ऐसा करना चाहिए. कितना मेहनत करता, हमने से तो इतना मेहनत नहीं होता. तो एक दिन वो थोड़ा बैठा हुआ था, तो मैंने पूछा, आपने अभी ज्वाइन किया? बोला नहीं, मैं तो 3 साल से जिम आ रहा हूँ. मैंने बोला 3 साल से जिम आ रहा, इतना मेहनत कर रहा है, तो भी स्लिम का स्लिम है, नो मसल्स नो बॉडी. 3 साल में मैं तो इसका 10% भी नहीं कर रहा, तो मेरा तो 30 साल में भी बॉडी नहीं बनेगा. एंड आई स्टॉप्ड गोइंग फ्रॉम द नेक्स्ट डे. आई वेंट ओनली फॉर 10 days. My 6 months money gone. Why? Because my belief was not there that being in the gym can change my body. तो belief नहीं था तो action नहीं आया, action नहीं आएगा तो result नहीं आएगा. So NLP में हम जो address करते हैं वो green को करते हैं. We reprogram your subconscious mind. That the thing. We do not focus on results. We focus on action will automatically happen. अगर आपने दिमाग को ठीक कर दिया तो एक्शन तो अपने आप आ जाएगा. यस, प्रोक्रास्टिनेशन इज अ प्रॉब्लम, इज अ डिजीज, एंड most of the people have that procrastination, and it can be addressed through NLP. So have you written it in the form? Okay, we will work on that. Okay. न्यूरोलॉजिकल पाथवेज. ओके, सपोज ये लाइट जल रहा है और उधर में बहुत सारा स्विच है. ये लाइट कौन से स्विच से बंद होगा बता सकते हैं? जिस स्विच से इस लाइट का वायर कनेक्ट होगा उसी से होगा. कैन यू स्विच इट ऑफ फ्रॉम एनी स्विच? नो. ओके, सिमिलरली हमारा जो बिहेवियर है, काम करने का तरीका है, उसके भी बहुत सारे स्विचेस होते हैं जिसको हम बोलते हैं ट्रिगर्स. ओके, अभी वापस से रेज योर हैंड कब आता है? हाँ, ओके, बट पीपल हैव राइट टू डिफर. मीन पीपल हैव राइट टू हैव देयर ओन ओपिनियन. तो उसमें बुरा मानने की क्या बात है? ओके ओके. मेरे एक दोस्त हैं, ही डेलिबरेटली ट्राई टू सर्च पीपल ऑफ डिफरेंट ओपिनियंस एंड ही लिसन देम सो दैट ही कैन लर्न डिफरेंट पर्सपेक्टिव. अगेन, अब क्या है,
इनका ट्रिगर क्या है? डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। तो जैसे ही डिफरेंस ऑफ ओपिनियन का स्विच दबता है, इनकी गुस्से वाली बत्ती जल जाती है। ये तो एक बात हुई। ऐसे जितने भी हमारे बिहेवियर पैटर्न्स हैं, हैबिट्स हैं, हर चीज़ का कोई ना कोई न्यूरोलॉजिकल पाथवे बना होता है। अभी इफ आई वांट दिस लाइट शुड नॉट lit up with that switch, what should I do? I cut the wire, then you press the switch, it will not start. Same happens. अभी अगर मैंने आपका वो तार काट दिया, तो आप कितनी भी ओपिनियन डिफरेंस हो जाए, आपको गुस्सा नहीं आएगा। एंड इट इज पॉसिबल इन NLP। ओके, NLP और दिमाग की जो सोच है, इससे आप अपना परफॉर्मेंस को बढ़ा सकते हो। एनी परफॉर्मेंस, यू वांट टू परफॉर्म गुड एज अ एडमिनिस्ट्रेटर और एज अ लीडर। और उन्होंने जोर से बॉक्स किया और वो चले गए। और ये जो लोग थे, इन्होंने उसका पंच का स्कोर नोट किया, कितना उसका स्कोर था, लिख लिया उसको। 6 months के बाद when their research was about to get completed, जब उनकी रिसर्च खत्म होने वाली थी, जॉन को फिर फोन किया। मिस्टर जॉन, यू रिमेंबर्ड यू केम टू आवर एक्सपीरियंस सेंटर 6 months बैक। हमारा रिसर्च पूरा होने वाला है, कुछ 2-4 सवाल रह गए पूछना, आप वापस आ सकते हो क्या? मिस्टर जॉन ने कहा, नो आई डोंट हैव टाइम, आई एम वेरी बिजी, मेरे बिजनेस में कोई प्रॉब्लम चल रहा है, मैं नहीं आ सकता। इन्होंने इतना फोर्स किया, इतना इंसिस्ट किया, सर 10 मिनट के लिए आ जाओ। ठीक है, मैं दिन में 3 बजे आता हूँ, 3 o'clock आई विल बी देयर। अब जॉन साहब जैसे अंदर आए, आज इन्होंने लाइट्स को थोड़ा डिम किया हुआ था, ठीक है। ये 5 लोग बैठे हैं। जब जॉन साहब अंदर एंटर किए तो कोई भी खड़ा होकर के उनका स्वागत नहीं किया। और जब जॉन साहब बैठ गए तो बोले, क्या बात है जॉन, आज आप बड़े परेशान नज़र आ रहे हो। पहले दिन क्या बोला था? यू आर लुकिंग वेरी स्मार्ट। और आज क्या बोल रहे हैं? बड़े परेशान नज़र आ रहे हो। तो जॉन ने कहा, मैंने बोला था, मैं परेशानी चल रही है मेरे बिजनेस में, आई डिड नॉट वॉन्ट टू कम बट यू गाइज फोर्स मी टू कम। मैं सब काम धंधा छोड़ के इधर आया हूँ, तो परेशानी तो है। चाय कॉफ़ी के लिए भी नहीं पूछा आज तो उससे बेचारे को। ओके, ही वॉज नॉट आस्क्ड। और आज इन्होंने जो सारे क्वेश्चन पूछे, उसकी डिफीट जब जब मिस्टर जॉन हारे थे, ओके, जब जब मिस्टर जॉन ने लूज किया था, मिस्टर जॉन आप तो इतने बड़े बॉक्सर हो, मुझे पता है 3 महीने पहले आप रोमानिया में किसी के साथ खेल रहे थे, आप कैसे हार गए एक छोटे से प्लेयर के साथ। नाउ दे आस्क्ड 5 questions and all the questions related to his defeats. Okay. No, it's here. अब क्या हुआ कि वो उनका टाइम हो गया जाने का। मिस्टर जॉन वॉज लिविंग। जब वो एग्जिट डोर पे थे, बोले सर आज उन्होंने रजिस्ट नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो 3 दिन से प्रैक्टिस कर रहे थे, 1 हफ्ते पहले खेल के आए थे, उन्होंने पूरी ताकत से पंच मारा। आपको पता है, जब दोनों को एनालिसिस किया, पहली बार जब उन्होंने पंच किया था, उसका जबकि इच्छा नहीं थी पहली बार में, उसका स्कोर बहुत ज़्यादा था और अभी का स्कोर बहुत कम था, बिकॉज माइंड वॉज नॉट इन ट्यून। और कभी आपके साथ होता है, जब आप अंदर से अच्छा फील नहीं कर रहे होते तो आपका कुछ काम करने का मन नहीं करता है। सो आपका दिमाग आपको परफॉर्मेंस करवा सकता है। आप जो आपने अभी पूछा, इफ यू कैन रिप्रोग्राम योर माइंड, यू कैन परफॉर्म एनीथिंग एनीवेयर। ओके, सो योर माइंड अफेक्ट्स एवरीथिंग, योर हेल्थ, योर वेल्थ। हमने जो प्रोग्राम किया था मिलियनर माइंडसेट अनलिस्ड, वो भी NLP का प्रोग्राम था, लेकिन हमने 3 दिन के केवल पैसे की बात किया। हाउ टू मेक मोर मनी, हाउ टू क्रिएट बिग बिजनेस यूजिंग योर माइंड। ओके, योर फैमिली, योर रियल रिलेशनशिप्स, योर बिजनेस, योर फेथ एंड योर फियर्स, योर लाइफ, it affects everything. It is your dream box. If you know how to use your mind, it can make anything happen for you. Okay. तो टी अगर तैयार है तो can we break for 10 minutes for tea? The tea is ready. So
because 11:30 I have to 11:40 I have to finish this session. So by 11:10 every कोई भी इंफॉर्मेशन मेरे दिमाग में जाके स्टोर हो रही है, बिलीफ है, एक्सपीरियंस है, फीलिंग है, हैप्पीनेस है, सैडनेस है, all this come through 5 senses. Either we see it, either we hear it, we feel it, we taste it, we smell it. कंप्यूटर में जैसे आप इनपुट करते हो तो किससे देते हो? कीबोर्ड से करते हो, माउस से करते हो, टच स्क्रीन से करते हो. तो न्यूरो मीन्स योर 5 सेंसेस. इन्हीं 5 सेंसेस के थ्रू सारे इंफॉर्मेशन आपके दिमाग में जा रही है. नंबर 2, linguistic means language and non-verbal communication system through which neural representations are coded, ordered and given meaning. Very interesting thing. I give an example. For the first time, I'm giving an example. I am a student. For the first time, I am on the stage and speaking, giving a speech, and little bit nervous. Feeling nervous sometimes is not bad. Whenever you do something for the first time, you feel nervous for some time. I am a speaker, confident speaker, have been to 30 plus countries and have addressed thousands of people. But once in 2008, I was in South Korea and I have to participate in World Public Speaking Championship, and there were 4,000 people who were listening to me, and there was a competition between 25 contestants from 25 different countries. I was well prepared, but the moment I reached on the stage, I was feeling little nervous. So it happened sometime. Okay? So 5 सेंस से जो आपने किया, तो मैं वो एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि वो एक स्टूडेंट स्टेज पर आता है, पब्लिक स्पीकिंग शुरू करता है, थोड़ा नर्वस है. हमें पब्लिक स्पीकिंग में डर क्यों लगता है, मुझे बताइए. वाई वी फील स्केर्ड व्हेन वी स्पीक इन फ्रंट ऑफ पीपल? वाई वी फील स्केर्ड? कैन यू टेल मी? आपको डर लगता है मुझसे कोई मिस्टेक ना. यस. What if somebody laughs at us, judges us? That's a problem. मुझे डर लगता है कहीं मैं भूल गया तो, if I forget, if I say something wrong, these are the things. Now when I am standing and speaking and I see in the last row, 2 guys are smiling, talking to each other. Okay. So what thought will come to my mind? Maybe I said something silly and they are making fun of me. Okay. This is the अब ये इनपुट मुझे कहां से मिला? आईज से. विच सेंस? माई आईज. आईज ने वो इनपुट लिया, दिमाग ने उसको इंटरप्रेट किया. दे आर स्माइलिंग, मे बी बिकॉज आई एम नॉट स्पीकिंग गुड, एंड देन आई फील मोर नर्वस. द सेकेंड स्पीकर कम्स and he also looks at those guys who are smiling and talking to each other, and he says, come on guys, just listen to me, I'm here. And they start paying me attention. उसने भी वही चीज़ देखी, लेकिन उसने उसका कुछ और इंटरप्रिटेशन निकाला. यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है. उस टीचर ने जब उस लड़की को ये बोला, it's very difficult to score 500 rank. So out of 50 students, everybody did not get polluted. A few of them got affected. कुछ को फर्क ही नहीं पड़ा होगा. इनके बोलने से क्या होता है? कुछ तो बोलते हो, मेरी तो वैसे भी 500 आने वाली नहीं है. I knew I am not going to be among 500. तो उनको बोलने दो, क्या फर्क पड़ रहा है? उसको कोई फर्क नहीं पड़ा. Somebody was very confident. मुझे मालूम है, I study, I give exam, I know I can bring in top 100. मीन्स जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास आती है, आपका दिमाग उसको क्या इंटरप्रेट करता है, अच्छा या बुरा, आपको नहीं पता. यू आर गोइंग ऑन द रोड एंड यू सी एन एक्सीडेंट. 5 people see an accident. All 5 people are seeing the same accident, but they are thinking different. So linguistic means
किसी भी घटना को आप देखते हो, सुनते हो, महसूस करते हो, आपका दिमाग उसका क्या मीनिंग निकाल कर स्टोर करता है, उसको क्या मीनिंग देता है, उसको बोलते हैं लिंग्विस्टिक। फिर तीसरा है प्रोग्रामिंग, जिसके लिए आपको यहाँ पर लाया गया है, बुलाया गया है, या आप अपनी इच्छा से आए हैं। ओके, यहाँ प्रोग्रामिंग होने वाली है। चेंजिंग द प्रोग्राम। इफ शी वॉन्ट्स टू फील मोर कॉन्फिडेंट, आई विल चेंज द प्रोग्राम. If she doesn't want to feel angry in the opinion difference, we will change the program. If she doesn't want to feel procrastination, we will change the program. Changing the program. कैसे चेंज किया? वो लाइट का वायर कट कर दो। और मैं अब एक प्रोग्राम बोलूँ कि ओपिनियन डिफरेंस हो, अभी तो आप गुस्सा होते हो, वॉट इफ somebody gives difference opinion and you appreciate, wow, you think differently, I never thought this other point of view. तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? ये तार इधर से काट के दूसरी लाइट में जोड़ना पड़ेगा, अप्रिसिएशन वाली लाइट में जोड़ना पड़ेगा। गेटिंग माई पॉइंट? सो दिस इज कॉल्ड प्रोग्रामिंग। ओके, बहुत सिंपल सी बात है। मैं आपको बोल रहा था, व्हेन अदर्स कैन डू, यू कैन ऑल्सो, यू कैन टू। द मोमेंट you empower your mind, when she can control anger, I can also control. When she can get up early in the morning, I can also. When he can speak fluently in front of 1,000 people, I can also do that. When she can swim, I can also. When she can control the stress, stressful situation में भी if somebody can smile, I can also do that. वो भी human being है, आप भी human being हो। सिर्फ मुझे अंदर थोड़ा नट बोल्ट को टाइट करने का, स्क्रू को टाइट करने का ज़रूरत है। ठीक है? ओके, ये जितने भी, मैं ऐसा क्यों बोला, why did I say so? When others can do, I can too, because all behaviors, thoughts, उनका एक स्ट्रक्चर होता है। जैसे कंप्यूटर में प्रोग्राम होता है सॉफ्टवेयर का, ऐसे हमारे दिमाग में भी सॉफ्टवेयर का प्रोग्राम है। उस जो प्रोग्राम है अंदर हमारे, उसको हम सीख भी सकते हैं। इनके पास अच्छा प्रोग्राम है, शी इज़ वेरी गुड एट स्टडीज, वेरी डिसिप्लिन, वेरी फोकस्ड। आई कैन लर्न, आई कैन चेंज द प्रोग्राम, आई कैन मॉडल, एकदम एज इट इज कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ। ब्लूटूथ से डेटा ट्रांसफर होता है, ऐसे मैं डेटा ट्रांसफर करा सकता हूँ। आई कैन टीच। गेटिंग माई पॉइंट? सो एवरीथिंग इज पॉसिबल। व्हेन यू कैन डू, आई कैन ऑल्सो। NLP का इस्तेमाल हम बहुत सारी जगह कर सकते हैं। रिलेशनशिप इंप्रूवमेंट में कर सकते हैं, कहीं किसी के में रिलेशनशिप का इशू है वो कर सकते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए कर सकते हैं, टाइम मैनेजमेंट के लिए कर सकते हैं। इफ़ यू वांट टू चेंज योर लाइफ स्टाइल, इफ़ यू वांट टू मैनेज योर स्ट्रेस, इफ़ यू वांट टू मैक्सिमाइज योर परफॉर्मेंस, इफ़ यू वांट टू गेट रिड ऑफ फियर्स एंड फोबियाज, इफ़ यू वांट टू मेक राइट डिसीजंस and you want to be more successful, you want to create a success strategies for your career, for your business, you can do that. ये तो सिर्फ कुछ एग्जाम्पल्स हैं, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जहाँ मतलब लाइफ का ऐसा कोई भी। तो NLP जो है, आपको NLP empowers you with more productive, better emotional management, you become emotionally strong. कितने लोगों को लगता है कि मैं बहुत आई बिकम वेरी इमोशनल एट टाइम्स? रेज योर हैंड। ओके, दैट्स नॉट बैड टू बी इमोशनल। यू कांट एक्सपेक्ट मशीन टू बी इमोशनल। इज इट बैड टू बी इमोशनल? इट इज द साइन ऑफ अ ह्यूमन बीइंग दैट आई एम अ ह्यूमन बीइंग and I am alive. That's nothing bad. But yes, if those emotions are constantly bothering you, making you feel dull and down, then of course you address them. You can address them for better relationship, professional growth, better decision making, strengthening your empowering belief, deleting unpleasant memories, limiting beliefs and bad habits, installing better patterns, ongoing scanner for your thoughts and behavior. NLP installs एक CCTV कैमरा लगाते थे आपके दिमाग के अंदर। Whenever your mind thinks negative, it stops immediately. Whenever you feel dull and down, immediately it stops. वो स्कैनर लग जाता है। NLP tells you. जब हम लैंग्वेज पैटर्न्स पढ़ेंगे परसों, you will get to know that how it helps you. Okay, कुछ चीज़ें मैं स्किप कर रहा हूँ because Vinay is going to take. हाँ जी, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? द ग्रीन सर्कल इज मोर इंपॉर्टेंट और द वाइट सर्कल इज मोर इंपॉर्टेंट? टेल मी। हेलो,
Of course, because the green circle you cannot, it's not under your control. कहते हैं ना कि मैं दुनिया को बदलना चाहता था लेकिन दुनिया को बदल नहीं पाया, और जिस दिन मैंने खुद को बदल लिया दुनिया अपने आप बदल गई. So change yourself, the world will change. So we are here to change our thoughts, words, action, behaviors and feelings. Remember, हाँ, वैसे यहाँ फीमेल ज़्यादा पर मैंने वहाँ मैन लिखा हुआ है, हाँ, बट पार्डन मी फॉर दैट. मैं इसको मैन यूज़ नहीं कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ वी आर नॉट प्रिजनर्स ऑफ फेट बट प्रिजनर्स ऑफ आवर ओन माइंड्स. हम अपनी किस्मत के गुलाम नहीं हैं. इंसान अपनी ज़िंदगी में अगर कम अचीव करता है, थोड़ा अचीव करता है, तो वो उसके दिमाग की वजह से. सो वी आर प्रिजनर्स ऑफ आवर माइंड. अगर वो प्रिजन को तोड़ दिया आपने, योर माइंड कैन मेक एनीथिंग हैपन फॉर यू. ओके, हाँ जी, कितने लोगों ने शार्क स्टोरी सुनी है लिमिटिंग बिलीफ पर? नहीं सुनी? चलिए, रियल स्टोरी है, मैं बता देता हूँ. जस्ट टू चेक हाउ योर माइंड गेट प्रोग्राम्ड फॉर स्मॉल थिंग्स. एक बड़ा साइज का स्विमिंग पूल, जो ओलंपिक साइज का स्विमिंग पूल होता है 50 मीटर्स वाला, उस स्विमिंग पूल में बिल्कुल सेंटर के अंदर एक ग्लास पार्टीशन लगाया. वो इतना ट्रांसपेरेंट था, इवन इफ यू आर स्विमिंग यू विल नॉट नोटिस दैट ग्लास पार्टीशन इज देयर. सो द वन साइड अ शार्क वाज देयर, द अदर साइड देयर आर लॉट ऑफ स्मॉल फिशेस वर देयर. शार्क वाज हंग्री, so wanted to eat other fishes. So जैसे शार्क को पता चला there are a lot of fishes, बहुत स्पीड से वो शार्क उधर जाती है. what will happen? रास्ते में एक बहुत बड़ा पार्टीशन है ग्लास का, it get banged with it and it is very hurting experience for her. बहुत चोट लगी उसको. जानवर है, उसको समझ में नहीं आया. Shark tried 4, 5, 6 times, but every time shark tried, it got banged with the glass and it was a very painful experience for the shark. After 6 attempts, shark stopped trying. Shark started moving. Desperation तो था, भूख लगी थी, उसको पता है कि मेरा वहाँ पे उधर खाना भोजन भी है, but you cannot do anything. I try to go, I feel the pain. Next day, that glass partition was removed. उसके बाद भी शार्क वॉज नॉट गोइंग टू अदर साइड, बिकॉज शार्क के दिमाग में एक मेंटल लिमिट सही होगी कि वेन एवर आई क्रॉस दिस लिमिट इट पेन्स, इट गिव्स मी पेन. आप सोचिए हमने हमारी ज़िंदगी में ऐसी कितनी सारी लिमिट्स सेट की हुई है. 2-3 बार किसी काम को किया और हमसे नहीं हुआ तो आई कैन नॉट डू दिस, आई कैन नॉट फोकस, आई कैन नॉट स्टॉप यूजिंग मोबाइल, I cannot be well organized, I cannot manage my money well, I cannot remember people's name. हम उसको जनरलाइज करते हैं. जैसा कहा ना, एक लड़के ने स्टेज पर पब्लिक स्पीकिंग में फेल हुआ तो उसको लगा मेरा कॉन्फिडेंस, अरे भाई 2 मिनट के लिए आपने बोला, उसमें कॉन्फिडेंस पूरी ज़िंदगी का कैसे कम हो सकता है. सो जस्ट आइडेंटिफाई दोज लिमिट्स इनसाइड योर माइंड एंड यू विल रियलाइज, एक बार वो लिमिट आपने तोड़ दी तो आप कभी ज़िंदगी में कल्पना नहीं कर सकते कि आप कितना कर सकते हो. यू कैन डू 1000 times more than your imaginations. तो चलिए अब आखिरी 10 मिनट में मैं आपको बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ NLP बताने वाला हूँ. बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ अनकॉन्शियस माइंड. अनकॉन्शियस माइंड वो माइंड है, सबकॉन्शियस माइंड तो आपको पता चल जाता है, यू आर लिसनिंग टू मी बट यू आर थिंकिंग समथिंग. क्या चल रहा है आपके दिमाग में? बोलिए, अरे समथिंग इज गोइंग, बोलो, मैं कनेक्ट, आई विल कनेक्ट विद इट. कुछ सोच रहे हो ना? ओके, बट यू आर कनेक्टिंग विद समथिंग एल्स. तो किसके साथ कनेक्ट कर रहे हो? स्टडी के साथ? क्या? हाउ आई कैन इम्प्रूव. सो क्या हुआ? शी इज़ लिसनिंग टू मी बट सबकॉन्शियस माइंड पैरेलली वर्किंग. हाउ आई कैन इम्प्रूव. सबकॉन्शियस माइंड उनको पता है, अनकॉन्शियस माइंड का पता ही नहीं होता कि उसके अंदर क्या चल रहा है. इतनी मिस्ट्रीज हैं उसके अंदर. तो उसके डायरेक्टिव्स पढ़ते हैं. नंबर 1, योर अनकॉन्शियस माइंड स्टोर्स ऑल द इंफॉर्मेशन. जो आपकी ज़िंदगी में आपके साथ हुआ वो सारी इंफॉर्मेशन वो स्टोर करता है, गुड और बैड. एवरी इंफॉर्मेशन इज देयर इनसाइड योर माइंड. ओके. नंबर 2,
it is domain of all the emotions, all good. क्या sadness is an emotion, happiness is an emotion, love is an emotion, hatred is an emotion, anger is an emotion, fear is an emotion, procrastination is also an emotion, staying in the comfort zone, that is कर लेंगे, addiction is also an emotion. ये सारे के सारे emotions कहाँ पर रहते हैं? Your conscious mind doesn't have any emotion. It is like computer, it has no emotion. All emotions resides inside your unconscious mind. Third, it organize all kind of memory. जैसे आपके कंप्यूटर में फोल्डर्स होते हैं, ऐसे इसमें फोल्डर्स होते हैं. और कंप्यूटर में कोई चीज सर्च करते हो तो कंप्यूटर उसको निकाल के देता है आपको. आपके साथ कभी बार ऐसा हुआ, आपने कोई आइटम, एनीथिंग, मे बी द कार की और मे बी द स्कूटर की और मे बी समथिंग एल्स, यू केप्ट समवेयर इन द हाउस एंड यू फॉरगॉट, एंड देन यू स्टार्ट सर्चिंग इट देयर, वो नहीं मिलता है. देन आप आंख बंद करके तसल्ली से बैठते हो एंड यू ट्राई टू रिकॉल एंड देन यू रिमेंबर, बिकॉज अनकॉन्शियस माइंड आपको याद रखता है. एक बार क्या हुआ, मेरे पास एक डेटा का पेन ड्राइव था, बहुत कॉस्टली, विच आई बॉट फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स फॉर ₹150,000 rupees. So I bought it and I kept it for so many days. It was in my laptop bag, and then I thought, I'm not using it on daily basis, let me keep it at a safe place. So after 10-15 days मैंने कहा अगर ये खो गया लैपटॉप बैग में से तो I will lose 150,000. So I kept it somewhere else. After 2 months I needed this because I was preparing a content, so I wanted to, and then I forgot where did I keep it. और कितनी महंगी चीज़, आप सोचो आपके गोल्ड की रिंग आप गलती से कहीं रख दो, डायमंड रिंग, और ना मिले तो कितना स्ट्रेस होगा. I searched everywhere in the evening and I was feeling very stressed, frustrated, irritated. Irritation is also an emotion. Frustration is also an emotion. सब जगह ढूंढ लिया. कई बार क्या होता है, आप ज़्यादा सेफ जगह पे रख देते हो ना, तो भी दिक्कत होता है, कहाँ रखा आपको ही नहीं पता. अब when I was searching with my conscious mind, but my unconscious mind knows where it is. The moment I connect with my unconscious mind, I can find it. When you meditate, do meditation, you connect with your unconscious mind. I got restless and then I slept. Early in the morning, there was a dream. Okay? And then I woke up after some time. And when I was taking shower, मैं भूल भी गया कि मुझे कोई सपना आया था रात को, ड्रीम भी था. But when I was taking shower, I got to know कुछ सपना आया था मुझे related to my pen drives. And then I closed my eyes and then I could recall that dream. What was that dream? I was going upstairs and there was my library room. From library room, I was entering the dressing room and there was a cupboard. I opened the door. There were 2 drawers. I am opening the right side drawer, and at the last corner of the drawer, a small polythene was kept having 3 pen drives. ये कहाँ पे आया? ड्रीम में. And I forgot the dream. And then when I was taking the shower, मुझे याद आया कुछ सपना आया था. And then I recalled the dream. And after taking shower, I went upstairs and found the pen drive at the same place. Now, who did tell me in my dream that where is the pen drive? My unconscious mind. Because it organizes all memories. When you go to exam, you study all 12 months. And when you go to exam, you forget few things. Because all your memory is there in unconscious mind. And you are writing answers with your conscious mind. You connect them. When you connect them, when you are comfortable, when you are easy, when you are calm and cool, you'll be able to connect them. But you are restless, you are desperate, it gets disconnected. Okay? So, organizes all kind of memories.
ये आपको निकाल के दे देगा। रिप्रेजेंट्स मेमोरीज फॉर सॉल्यूशंस, आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स है, बीच बीच में आपको प्रॉब्लम दिमाग याद दिलाता रहेगा, इसलिए नहीं कि वो आपको तकलीफ में देखना चाहता है, इसलिए वो आपको याद दिला रहा है सॉल्व दिस प्रॉब्लम। किसी के साथ झगड़ा हुआ, यू फॉट विथ समबडी, किसी का पैसा देना है, किसी नए क्लाइंट से बात करनी है, स्कूल के लिए नए बिल्डिंग ढूंढना है, ये दिमाग बीच बीच में याद क्यों दिलाता है आपको? जस्ट टू हेल्प कि आपको उसका सोल्यूशन चाहिए। ओके, कीप नेगेटिव इमोशंस हिडन। लाफिंग पॉजिटिव और नेगेटिव? पॉजिटिव। क्राइंग पॉजिटिव और नेगेटिव? नेगेटिव। You laugh more or cry more? Laugh more, of course. So your mind is trained enough to stop you from negative. वो आपको बचाता है उससे. But when somebody goes into depression or severe depression, वो इंसान हंसना बंद कर देता है because वो किसी गलत डोमेन में चला जाता है. But your mind helps you. It protects you. It rules your body. I told you. It rules our body. Even if you're listening to me, your body is running, your mind is running your entire body. Your digestion system is working, your kidneys are functioning, everything is happening as it is. It preserves the body. It preserves the body. जहाँ जहाँ अपने आप कुछ सेल्स डाई होते हैं तो नए सेल्स बॉडी बनाती है, सेल्स रिपेयर होती है, तो माइंड कंट्रोल्स एवरीथिंग. When it is so hot outside, your body release the sweat, so that who does it? Your mind does it, because it is preserving your body. It is high moral being. Means every country has a constitution. Hello, every country has a constitution. Why? Constitution क्यों होता है किसी country में? हाँ जी. Okay. What is right, what is wrong, so that people can follow certain set of rules. Same way, every person has his or her own constitution, that is personal value system. For me, telling a truth is my value system, but for somebody else, telling a lie is not a big problem. उसको फर्क नहीं पड़ रहा. For me, giving a bribe to somebody to get my things done is okay, but for somebody it is not okay. Okay? तो ये सबका अपना अपना वैल्यू सिस्टम होता है, और वैल्यू सिस्टम आपका ज़िंदगी में अपने अपने एक्सपीरियंस से बनता है. कुछ लोग भगवान को मानते हैं, कुछ लोग भगवान को नहीं मानते, कुछ लोग फास्टिंग करते हैं, कुछ लोग फास्टिंग नहीं करते, कुछ लोग मंदिर में जाते हैं, कुछ लोग नहीं जाते, कुछ लोग, सबके अलग अलग वैल्यू सिस्टम्स हैं. खराब और सही की बात ही नहीं कर रहे. एवरीबडी हैज़ डिफरेंट वैल्यू सिस्टम. ये वैल्यू सिस्टम मेरे अनकॉन्शियस माइंड में होता है, एंड इट कंट्रोल्स मी. इट डजंट अलाउ मी टू क्रॉस माई लिमिट्स. ओके, फॉलोज इंस्ट्रक्शंस ऑफ कॉन्शियस माइंड. अब क्या होता है, गाड़ी का ड्राइवर जो है ना, गाड़ी का ड्राइवर तो कॉन्शियस माइंड है. सो इफ यू आर लिसनिंग मी, लिसनिंग कॉन्शियसली. इफ यू आर राइटिंग कॉन्शियसली. सो इट फॉलोज द इंस्ट्रक्शन ऑफ कॉन्शियस माइंड. क्योंकि आप स्टेज पर खड़े हो और स्टेज पर खड़े खड़े बोलते, कॉन्शियस माइंड ने बोला, बेटा 1000 लोग सामने बैठे हुए हैं, तुम कैसे बोल पाओगे, तुम्हारी हिम्मत नहीं है. तो ऐसे बोला तो दिल की धड़कनें बढ़ी, तो इंस्ट्रक्शन फॉलो कर लिया उसने कि हाँ यार सही कह रहे हो तुम, यू आर राइट, आई एम फीलिंग स्केयर्ड, यू सेड राइट. सो उसके इंस्ट्रक्शन फॉलो कर रहे हैं. And then suddenly I decide, no, I prepared a lot, and today I've decided that everybody should listen to me and everybody should give big round of applause to me. I'm here to deliver. I want to make my parents proud. I want to make my teachers proud. I want to speak. Who's saying it? Conscious mind. Then subconscious starts following it. Okay. Receives all information through 5 senses. Unconscious mind में सारा का सारा डेटा कहाँ से आता है? हेलो, कहाँ से आता है? 5 सेंसेस से आता है. उसके अलावा आपके पास और कोई तरीका नहीं है. इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर एनर्जी इन योर बॉडी. ओके, एक एग्जाम्पल देता हूं कि मान लीजिए आप सुबह उठे एंड यू आर नॉट फीलिंग वेल.
ठीक है, you feeling body ache, you're feeling weak, and then you skipped breakfast also, and you were feeling hungry. So there is no energy in your body, you're not feeling well, you are hungry also, and you don't feel like to going to office, and then you decided to stay at home. There is no energy in the body, and suddenly you get to know that your best friend is coming to Kathmandu after 10 years, whom you are missing a lot, and that friend is only for 2 hours and you want to meet. And suddenly you start feeling energy. वो एनर्जी कहाँ से आई? Your mind give that energy. वो एनर्जी मोटिवेशन से भी आती है और फियर से भी आती है. वो फियर से भी आती है. अभी मान लो ये लिफ्ट है, ठीक है, एक कोई गनमैन यहाँ पर आ जाए अंदर गन लेकर के और बोले कि भाई देख लो, मैं एक भला इंसान हूँ, बुरा भी हूँ, लेकिन एक मौका दे रहा हूँ, आई गिव यू 30 सेकेंड्स. जो 30 सेकेंड में ग्राउंड फ्लोर पे पहुँच गया उसको मैं छोड़ दूँगा. ठीक है, आप क्या करोगे? आप बोलोगे भाई देखो मेरे घुटनों में बहुत दर्द है, मैं दौड़ नहीं सकता, तुम तो मुझे गोली मार दो. वुड यू से दिस? व्हाट वुड यू डू? अभी घुटनों का दर्द भी चला गया, थकान भी चली गई, आप ऐसा तेज भागोगे जैसा जिंदगी में कभी नहीं भागा. हु गिव्स यू दिस एनर्जी? योर अनकॉन्शियस माइंड गिव्स यू दैट एनर्जी. तो व्हेन यू फील वीक यू टेल इट 10 टाइम्स. यू नो, आई टेल यू बहुत, हमारा दोनों का रूटीन बताता हूँ. यस्टरडे, मतलब दोनों का कॉमन बता रहा हूँ. आई वोक अप एट 6 o'clock, गॉट फ्रेशन अप, वेंट टू जिम, रिटर्न बैक फ्रॉम द जिम एट 8 o'clock, देन डिड ऑल माई पैकिंग फॉर दीज 4 days. सारी पैकिंग की. मैं पैकिंग पूरी लिस्ट बना के करता हूँ सो दैट आई डोंट स्किप एनीथिंग. मैं पहले लिस्ट बना देता हूँ और लिस्ट के हिसाब से पूरी पैकिंग होती है. सो आई डिड द पैकिंग, आई गॉट रेडी. देन मेरी एक मीटिंग थी, देन वेंट टू ऑफिस एट 10:30. टिल 4 o'clock आई वॉज इन ऑफिस, एक्सट्रीमली बिजी बिकॉज नेक्स्ट आई नो 4 days आई एम नॉट गोइंग टू इन द ऑफिस. आई वर्क 4 o'clock ड्राइव करके 4:30 आई रीच बैक होम. कुछ पैकिंग में 1-2 चीज़ें डालनी बाकी थी, मेडिसिन वगैरह, वो डाला, चाय पिया. 5 o'clock आई लेफ्ट, 5:30 आई रीच्ड रेलवे स्टेशन. 6 o'clock ट्रेन चला, 11:30 वी रीच दिल्ली. दिल्ली रेलवे स्टेशन से सीधा हम आए एयरपोर्ट. 12:30 फ्लाइट वॉज एट 4:30. ओके, वी रीच्ड हियर एट 6:30 एयरपोर्ट, और यहाँ पर हम 7:45 पे पहुँचे. ठीक है, फ्रेशन अप हुए और आपके सामने यहाँ है, और शाम तक आपके सामने है. वी डिड नॉट स्लीप एट ऑल. यस्टरडे होल डे आज वर्किंग, और आज तो ज़्यादा मेहनत है, खड़े रहना है, बोलना भी है, खड़े भी रहना है, ज़्यादा एनर्जी है. बट योर माइंड गिव्स यू एनर्जी. Sometimes you sleep for 10 hours, still you feel weak and lack of energy. So your mind gives you a lot of energy. It creates habit. सारी जो आपके habit के patterns हैं, addictions हैं, procrastination is there inside unconscious mind. Okay. It maintains all instincts. Intuition होता है, instinct होता है. हम कहते हैं ना, I feel good vibes from this person, bad vibe from this person. कहीं कोई risk मुझे नज़र आती है. ये जो इंस्टिंक्ट होते हैं, वो इंस्टिंक्ट योर अनकॉन्शियस माइंड कैन. इट नीड्स रेपिटेशन. बिफोर इट बिकम्स अ हैबिट, इट नीड्स अ रेपिटेशन. आप बार बार एक ही चीज़ को रिपीट करते हो, बोलते हो, एक दिन में एक हैबिट नहीं बनती. इट टेक्स सम टाइम. सो इफ यू स्पीक वन थिंग, नो आई एम नॉट हैविंग दैट कॉन्फिडेंस, आई एम नॉट गुड एट दिस, आई कैन नॉट वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आई कैन नॉट कंट्रोल माई एंगर, आई कैन नॉट रिमेंबर मेनी थिंग्स, आई एम नॉट गुड एट मैथ्स, आई कैन नॉट स्पीक वेल, I cannot control my expenses. More you say, it gets repeated, and more you repeat, it gets stored there. Now that's very dangerous thing. It seeks more and more. What does that mean? एक बार आपके अनकॉन्शियस माइंड को किसी की आदत पड़ गई किसी चीज़ की, तो उसको ज़्यादा करने में मज़ा आता है. एक एग्जाम्पल लेते हैं. एक इंसान है जिसको चोरी करना सीखा हो. अब जब किसी इंसान ने पहली बार चोरी किया होगा, थेफ्ट किया होगा, वॉज इट अ प्लेजेंट एक्सपीरियंस और वॉज इट अ स्केरी एक्सपीरियंस फॉर हिम? स्केरी.
ही मस्ट नॉट हैव बीन अ कंफर्टेबल, बाद में उसको गिल्ट भी हुआ होगा। लेकिन क्या हुआ, अब निकाला, थोड़ी देर का डर था, लेकिन 10,000 1 लाख रुपए आया तो इट वॉज ए ईजी मनी, पैसा खत्म हो गया, चलो अब दूसरी चोरी करते हैं। 3 4 5 बार रिपीट हो गया, इट बिकम्स अ प्रोग्राम। अब ये प्रोग्राम बन गया तो आपका अनकॉन्शियस माइंड उसको बार बार, उसको मजा आता है, एडिक्शन हो गया। जैसे किसी को सिगरेट का एडिक्शन है, उसको चोरी का एडिक्शन हो गया, उसको और चाहिए। इसी तरह से कोई स्कूल और कॉलेज का टॉपर है, उसको हमेशा टॉप आने में मजा आता है, तो उसका प्रोग्राम क्या है, आई वॉन्ट टू बी द टॉपर। उसको टॉप आने में मजा आता है, टॉप आना उसकी हैबिट है, तो उसको और चाहिए। हमारा एशिया का, हु इज द रिचेस्ट पर्सन ऑफ एशिया, कैन यू टेल मी, हु इज द रिचेस्ट पर्सन ऑफ एशिया? पर्सन मुकेश अंबानी, वेरी राइट, इज द रिचेस्ट पर्सन ऑफ एशिया। उसके पास इतना पैसा है कि वो पूरे खुले हाथों से खर्च करे ना। उसने अपने बेटे की शादी में 650 करोड़ रुपीस खर्च किया, 650 करोड़। एक पॉप आर्टिस्ट है रिहाना, जिसने 6 साल से कोई परफॉर्म नहीं किया था, उसको बुलाया, 60 करोड़ रुपए तो रिहाना को दिए उसने। फिर एक मेडिटेरेनियन सी में एक क्रूज लेके गया अपने 200 गेस्ट का, 10 दिन तक वहां पर एक फंक्शन चला, मतलब 1 साल तक शादी चली। इतना पैसा उसके पास, फिर भी उसको और चाहिए। उसको मालूम है कि वो 10-20 साल का मेहमान और है, फिर क्यों चाहिए? क्योंकि वो अनकॉन्शियस माइंड में ऐसा प्रोग्राम है कि उसको एक बार आदत पड़ जाती किसी चीज़ की, तो उसको वो करने में मज़ा आता है। वो उसके बगैर नहीं, उसको उसके अलावा कोई और चीज़ दिखती नहीं है। What if you develop? If money is not coming to me, the reason I am not able to create that program in my mind, I am not able to make my mind addicted for money. एक बार उसको प्रोग्राम समझा दिया आपने पैसा कमाने का, तो फिर वो बाकी काम वो करने लगेगा। It is nothing to do with your qualification. This is what we discuss in Millionaire Mindset program. It is the program you create. So it seeks more and more. तो बुरी चीज़, अगर आपने ज़्यादा सोना शुरू कर दिया, ज़्यादा प्रोक्रास्टिनेशन शुरू कर दिया, तो दिमाग को वही अच्छा लगने लगेगा। उसको ज़्यादा नींद चाहिए, ज़्यादा मोबाइल चाहिए, ज़्यादा गुस्सा चाहिए, ज़्यादा खाना चाहिए। ओके, एंड वर्क्स बेस्ट एज अ होल इंटीग्रेटेड यूनिट। तो हमारे अनकॉन्शियस माइंड में बहुत सारे पार्ट होते हैं। जैसे एक फैमिली में 5-7 पीपल, सो फैमिली रन्स वेल व्हेन 5-7 पीपल्स आर इन हार्मनी. They live together, they think together, they have a good bond. Same way, if inside the mind there is a contradiction, there is a conflict, it doesn't work nicely, it doesn't give you good idea, your decision making is going to be bad. आपकी decision making अच्छी कब होगी? जब आपका दिमाग के सारे parts एक जैसा सोचते हैं। आपका दिमाग memories के लिए, जैसे मैंने आपको बोला था, think about your early childhood days when you were going to school. मैंने क्या बोला था? think, but automatically pictures आए। So आपका दिमाग, अनकॉन्शियस माइंड ज़्यादातर चीज़ों को मेटाफोरिकली यानी कि इमेजेस के फॉर्म में याद रखता है। ओके, एक ये भी बहुत खतरनाक चीज़ है, टेकिंग एवरीथिंग पर्सनली। व्हाट डज दैट मीन? एवरीथिंग यू स्पीक, ये उससे कोई ना कोई मीनिंग अपने लिए निकाल लेता है। ठीक है, आई गिव एन एग्जाम्पल। आपके किसी ऐसे फ्रेंड का नाम बताइए जो बहुत आलसी है। बैठ के आराम से, कंफर्टेबल। आलसी, लेजी। कोई बात, हाँ कौन? सरिता। ओके, यहाँ तो नहीं है ना? चले ठीक है फिर। नहीं, एक सरिता यहाँ पर है, मैं बोला कि ओके। चलिए, अब व्हाट डज दैट मीन? आप जब देखते हो कि यार उसकी तो लाइफ में ऐश है, सुबह आराम से सो के उठती है, मन हो तो ऑफिस जाती है, नहीं तो नहीं आती, यू आर अप्रिशिएटिंग इट। नाउ व्हेन यू आर अप्रिशिएटिंग इट, आप किसके बारे में बात कर रहे हो? फ्रेंड के बारे में। बट योर माइंड इज टेकिंग इन्फ्रेंस आउट ऑफ इट। वो उसका इन्फ्रेंस निकाल रहा है। क्या इन्फ्रेंस निकाल रहा है? ओ, इट इज़ गुड टू बी लेजी। तो वो इन्फ्रेंस आपके दिमाग में अप्लाई कर देगा।
कई बार क्या होता है, आपके सर्कल में, रिलेशन में किसी इंसान के पास अचानक से बहुत पैसा आया और आप दोस्तों में बात करते हो, आप ऐसा बोलते हो, इसके पीछे एक रीज़न है, बिकॉज आप अपने ईगो को सेटिस्फाई करना चाहते हो, बिकॉज आप ये नहीं कहना चाहते कोई इंसान आपसे ज़्यादा समझदार और इंटेलिजेंट है इसलिए उसने पैसा कमाया। आप कहना तो यही चाहते हो कि नहीं, इंटेलिजेंट तो मैं हूँ, उसके पास तो पैसा, वो तो बेवकूफ़ है, पैसा उसके पास किस्मत से आया, तो यू आर सेटिस्फाइंग योर ईगो। बट द रीज़न इज़, जब आप ये कहते हो कि वह बेवकूफ़ इंसान है, बिल्कुल अकल नहीं है उसको, किस्मत से उसने पैसा बनाया, याद है, योर माइंड इज टेकिंग अ कंक्लूजन आउट ऑफ इट that money can be made only if you have right luck, and it gets in your mind, and your mind accepts it, and your mind doesn't allow you to do hard work because your mind knows किस्मत में होगा तो आ जाएगा भाई, क्यों मेहनत करने का। तो ऐसा कभी भी, even do not talk nonsense about third person. When we talk nonsense or criticism of third person, your mind is extracting some good or bad from it and applying in your life. And that's why we say never criticize people, because when you, और हमारे तो धर्म में एक और चीज़ कही गई है, जब भी हम किसी व्यक्ति की बुराई करते हैं, चाहे उसने बुरा काम किया हो ज़िंदगी में, जब भी हम किसी व्यक्ति की बुराई करते हैं, उसके जो पाप हैं, वो बुरे कर्म हैं, वो बुराई करने वाले पर शिफ्ट हो जाते हैं। ये तो लिखा है, वो शिफ्ट आपके ऊपर। सो व्हेन यू आर क्रिटिसाइजिंग समबडी, यू आर इनवाइटिंग ट्रबल्स, यू आर क्रिएटिंग योर माइंड, यू आर मेकिंग योर माइंड अ डस्टबिन। नेवर डू दैट, ओके। थर्ड, ऑलवेज फॉलो द पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस। उसको मान लीजिए आपके माइंड को ना शॉर्टकट पसंद होते हैं, तो आपको ये बताना पड़ेगा कि मुझे टॉप करना है तो चीटिंग करके नहीं करना, पढ़ाई करके करना है। I won't think about a white elephant. Think about a white elephant. But don't think about a black monkey. Please don't think about a black monkey. Only think about a white elephant. Don't think about black monkey. You don't have to think. Open your eyes. Okay. जनरली योर माइंड डजंट प्रोसेस नेगेटिव। जिस काम को करने के लिए मना करते हो, दिमाग उसको करेगा। तो उसका दूसरा तरीका आपको बोलना पड़ेगा कि सर फिर मैं क्या बोलूँ, उसका तरीका हम सीखेंगे डे 3 में। सो इट डजंट प्रोसेस नेगेटिव। इसीलिए बच्चों को कभी भी ये मत बोलो डोंट डू दिस, योर माइंड डजंट प्रोसेस। तो अब डोंट डू दिस में से नॉट हटा दो तो क्या बचेगा, डू दिस। एंड दैट्स अ साइंटिफिक रीजन। बेटर टेल देम व्हाट टू डू। उनको ये बताने की जरूरत नहीं कि उन्हें क्या नहीं करना, उनको ये बताइए कि उन्हें क्या करना है। ओके, ये आई एम स्किपिंग दैट एंड एक छोटा सा वीडियो देखेंगे कि कैसे आपका दिमाग आर्टिफिशियल चीज़ों को भी So as I do this, your mind will start to connect these sensations together. It should start to feel like an action. the power of your mind. Okay, so it was all about the basics of NLP. Now we are coming to the second session immediately. To know more about it, so we invite Vinay sir on जोरदार तालियों के साथ विनय सर को हम बुलाते हैं।